کالر جی ہمارے ساتھ، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، میرا نام سارا ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم شادیوں پہ دیکھتے ہیں کہ امام ضامن باندھا ہوتا ہے دلہا دلہن نے، تو کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی علامہ صاحب، امام ضامن باندھا ہوتا ہے شادیوں پہ؟ جی امام ضامن تو سب سے پہلے تو اللہ کی ذات ہے، لیکن پھر اس نے وسیلہ بنایا ہے، جس طرح اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک امام ضامن جو ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام سے منسوب ہے کہ شادی کے اوپر جو دلہن اور دلہن کی جو حفاظت ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو تعویذ لکھا جاتا ہے وہ بھی ائمہ سے منسوب ہے امام علی رضا علیہ السلام سے، تو وہ اس سے جو ہے انسان کے یعنی بھلائی کے لیے ہے، بہتری کے لیے ہے، تاکہ اللہ کی حفظ و امان میں رہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی نہیں ہے، شرک اس میں نہیں آ سکتا۔ ایک ہمارے ساتھ جو سوالات آپ کے ہیں، آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر اور موبائل پر وہ نمبر دیکھ رہے ہوں گے جو واٹس ایپ پر ہمیں موصول ہوئے ہیں آپ کی طرف سے، انہی کے جوابات لے رہے ہیں۔ ایک سوال ہمارے ساتھ سامنے یہاں پر پڑا ہے، ابو بکر صاحب لکھ رہے ہیں راول پنڈی سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلے میں چاندی کی چین ڈالی ہوئی ہے اور نماز اس کے ساتھ پڑھی ہے اور وہ نمایاں نظر آتی ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی اعتبار سے تو ویسے اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ شاعر اسلام میں کیا یہ چیز شامل ہے، یا ہم جو مسلم امہ ہے کسی مسلم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ یہ کڑا پہنے یا وہ چاندی کی چین پہن لے ہاتھ پر یا گلے میں لٹکا لے؟ تو ویسے اسلام سے اس کا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ فقہاء رحمہم اللہ سے کوئی دلیل نہیں ملتی اس کی۔ بہتر یہ ہے کہ نہ پہنی جائے، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں مسلم امہ کا شعار نہیں ہے، غیر مسلم یہ عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کرسچن لابی کو دیکھیں اور باقی، ویسے اس کے بارے میں تو علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر بھی ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ یعنی اگر وضع قط دیکھیں ہم سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک تو ہم کرسچن لابی کے فالور ہیں، اور اگر ہم جو ہے وہ اپنی رسوم و رواج کی طرف دیکھیں تو ہم ہنود کے، یعنی مشرکوں کے، ہم یہ جو بت پرست ہیں ہم ان کے جو ہے پجاری ہیں اور ان کے فالورز ہیں۔ تو شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ قرآن و سنہ، قرآن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فقط، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ اور جتنی بھی دنیا کا نظام ہے، یا جتنے ائمہ ہیں، اولیاء، اتقیاء، صالحین، کتب ابدال جو ہیں، وہ بلاتے ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے تو بلا شبہ اس کی امامت میں، اس کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو منع سے ہٹ جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس کی ولایت تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے اسلام میں شک ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن کی مشابہت ہی امت مسلمہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، کیوں یہاں پہ تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے بڑے وہ بھی پہن لیتے ہیں ملائیں سے، اور پتہ نہیں کس قسم کے چیزیں بھی پہنے رکھتے ہوتے ہیں۔ یہ جو مرد کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، کسی بھی قسم کا زیور پہننا یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ کسی طرح کا بھی زیور ہو جس پر لفظ زیور بولا جائے، بھلے سے وہ سونے کا ہو، بھلے سے وہ چاندی کا ہو، بھلے سے وہ پیتل کا ہو، کسی بھی دھات کا بنا ہو، بطور زیور مرد کے لیے کوئی بھی چیز پہننا جائز نہیں ہے۔ اصول یہی ہے کہ ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم کی، یہ بھی بطور سنت سمجھ کے پہنے گا، بلکہ بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ انگوٹھی بھی اگر ضرورت بنے نا تو تب پہنے، لیکن بہرحال سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی انگوٹھی پہنتا ہے تو وہ بھی دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کی اس انگلی کے اندر پہننا یہ مسنون ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر بطور زیور کوئی چیز تو نہیں پہن، یہ بھی بطور سنت پہنے گا۔ تو چین جو ہے نا یہ یہود کے ساتھ مشابہت ہے، تو بھلے سے وہ چاندی کی ہو، بھلے سے وہ سونے کی ہو، وہ تمام کے تمام زیورات مرد کے اوپر حرام ہیں۔ سوال ان کو یہ کرنا چاہیے کہ عام حالات میں پہننا کیسا ہے۔ اگر بالفرض اللہ نہ کرے کسی نے چین پہن کے نماز پڑھ لی تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن جو یہ عمل اس نے کیا ہے نا یہ عمل اس کا مکروہ ہے۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ عام حالات میں پہننا چین کیسا ہے، یہ جائے کہ نماز پڑھنا اس کے ساتھ آج کل جو مولانا صاحب جو گھڑیاں پہنتے ہیں لوگ، بڑی بڑی وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ مہنگی، اور وہ بھی ایک طرح سے زیور کے طور پر ہی استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ جو گھڑی ہوتی ہے نا یہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت تو موبائل پہ بھی ٹائم آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی بندے نے، ہم نے تو حکم شرع بیان کرنا ہے نا، ہم یہ اگر اس میں آپ کو
फ़ख्र नज़र आए जी कि मेरी घड़ी दूसरे से बेहतर है, तो मेरे फिर बाजू अगर पे अच्छी लगती है। तफाखुर के तौर पर तो हाफिज साहब लिबास ऐसा पहनना तफाखुर के तौर पर वो मना है, चीज आए कि कोई घड़ी पहन रहा है। मैं सिर्फ आपके सामने मसला शरी रख रहा हूँ कि चूंकि घड़ी एक ज़रूरत की चीज़ है, तो अगर किसी ने घड़ी चेन वाली पहन ली तो उसके अंदर बाज़ फुक़हा ने इजाज़त दी है, लेकिन उसमें भी बेहतर ये है कि कोशिश करें कि चेन के अलावा कोई चीज़ से, किसी चीज़ से अगर काम चल सकता हो तो उसी पर अमल किया जाए। जब आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो बेहतर ये है उससे इज्तनाब किया जाए। लेकिन अगर किसी ने पहन ली, तकब्बुर है ना, तकब्बुर से वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैसे तो रसूलुल्लाह की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा लिबास पहने, अच्छी गाड़ी के मतलब भी अल्लाह के रसूल का हुक्म है, सवारी बेहतरीन होनी चाहिए, लिबास अच्छा होना चाहिए, आपके पास है तो इस्तेमाल करें। अच्छा, एक मैं माज़रत के साथ वो उनकी बात की कि इन 2 उंगलियों में इजाज़त है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, ठीक है, या इसमें पहन लें या इसमें पहन लें। इन 3 से अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, अंगूठे में और ये दरमियान वाली और तशहुद वाली उंगली में, शहादत वाली जो उंगली है, इन तीनों से मना फरमाया और 2 में हम पहन सकते हैं। ख़वातीन तो फिर ख़वातीन के लिए मुबहम हुक्म नहीं है, ख़वातीन के लिए तो ख़वातीन तो ज़ेवरात पहन सकती हैं, जितने मर्जी मतलब उनके लिए ये वाली उंगलियों की कैद नहीं है, नहीं कैद नहीं। बहरहाल मर्द के लिए है कैद, और मर्द को चाहिए वैसे मुशाबत ना करे। वो जहाँ उन्होंने ये बात फरमा दी कि नमाज हो जाएगी उसकी, बात होती कुल्ली हुक्म। जैसे बात जब हम ये करते हैं कि वो नमाज के लिए टखनों से शलवार ऊंची कर रहे होते हैं ऊपर, ये अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया, ये फोल्ड करना ये मना फरमा दिया। असल में तो 24 घंटे 24 आवर्स हुक्म है कि टखनों से मर्द की शलवार तहबंद पैंट पजामा हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। वो पैंट पहनता है फिर भी ऊंची रखे, लेकिन लिबास होना नैरो नहीं चाहिए। नैरो लिबास से मना फरमाया, मर्द और औरत को यकसा, जो तंग लिबास हो जिससे जिस्म वाजे हो, ऐसा खुला लिबास पहने, पैंट भी पहन ले, ट्राउजर भी पहन ले, उसके ऊपर शर्ट लंबी पहने जिससे उसके जिस्म के आज़ा वाजे ना हो, लेकिन हो टखनों से ऊंची, हो टखनों से हुक्म पाबंद है। ठीक है, एक कॉलर है जमात। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरमा कहाँ से हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आयशा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैडम फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि अगर लड़की अपने निकाह नामे में हक महर और अपने हकूक जो लिखवाती है और लड़के वाले उस चीज़ से इनकार कर देते हैं, तो लड़की के लिए इसमें क्या हुक्म इस्लामी तौर पर? ठीक है, अल्लामा साहब, अगर ख़ातून अपनी तरफ से कोई हक महर या कोई भी निकाह के वक्त चीज़ें लिखवाई जाती हैं और वो बाद में इनकार कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक महर जो है ये लड़की का हक है, यानी जो जिसके बदले में वो और जो दुल्हन बन के जा रही है, रुखसती हो रही है। और पाकिस्तान में ज़्यादा जो होता है निकाह फर्म उसको पढ़ते ही नहीं है लोग, उसके ऊपर जो शराइत लिखी है ना उस पर अमल करना चाहिए। और उसमें जो हक महर लिखा गया है, जो मुअय्यन किया गया है, वो देना वाजिब है उसके ऊपर। अगर सिर्फ रुखसती से पहले है तो वो बेशक आधा दे दिया जाए, लेकिन अगर वो शादी के बाद जो है वो अदा नहीं करता तो ये उसके ऊपर हराम हो सकती है। अच्छा, निकाह उसका बातिल हो जाएगा, क्योंकि हक महर शर्त है। हक महर शर्त है, अगर वो पूरा नहीं कर रहा तो उसकी निकाह जो है वो बातिल है। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक है मुअज्जल, एक है गैर मुअज्जल। मुअज्जल का माने फ़ौरन अदा कर दिया जाए। बाद लोगों ने वैसे मजाक बना रखा है इस्लाम को ना, इस्लामी तालीमात को माज़अल्लाह। अब वो एक सब हैसियत है। फिर मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, अगर मैं 20,000 दे सकता हूँ या 50,000 फ़ौरन दे सकता हूँ तो मुझे देना चाहिए। ये क्या हो जी मैं 5,000 लिखवा दें या 10,000 लिखवा दें। और मैं ये समझता हूँ कि जो इमाम पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मेरी पूरे पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मुफ्तियान शरअ मतीन से और अल्लामा और फ़ाहमा जितने भी इल्म के सतून हैं उनसे ये इल्तमास है कि मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वल्लाह किसी भी हाल में निकाह पढ़ाने के लिए ना जाए। ये तय कर लें कानून तमाम मकातब फ़िक्र वाले कि हमने मस्जिद के अलावा निकाह कहीं नहीं पढ़ाना। लेकिन ना जी हम इनके पाबंद नहीं है, नौकर नहीं है हम इनके। ये मैं वाज़ेह बात कर रहा हूँ कि उम्मत के मुलाजिम नहीं है, हम रजिस्टर्ड उठाएं और इनके पीछे जो हाल में चले जाएँ और फिर वहाँ जाके इनके नाज़ो नखरे सहें और वो लेट भी हो जाए। अव्वल तो हमारा ये मुकाम है। अब देखें कि हर मज़हब के अंदर अब देखें कि उनके अपने अपने जो मुअस्सस इदारा है इनका यहूद का, इसके अलावा जो है कि अब देखें गिरजा है, इसके अलावा आप देखें जो उनका मंदिर है, और वो इसके अलावा कहीं नहीं जाते। उनकी ये वैल्यू है। हमने अपनी वैल्यू को खुद डिग्रेड कर लिया है, हमें जाना ही नहीं चाहिए भाई, खुद वहाँ आके निकाह पढ़ाओ। रह गई बात जो है हक महर की, तो हक महर अगर एक लड़की डिमांड करे, लेकिन बात यह है कि अगर तो लड़की देखे ना जी ये सोचते हैं फ्यूचर के मुतल्लक, तो फ्यूचर का तस्वुर ही इस्लाम के अंदर नहीं है, मुस्तकबिल कोई शय नहीं है। इस्लाम प्रेजेंट की बात करता है, हाल की, अभी की बात हो रही है, मेरी आपकी। हम अगर सही चल रहे हैं कुरान और सुन्नत पर, अभी मौत आ जाएगी तो बख्श दिए जाएंगे। एक भी लम्हा अगर हम कुरान और सुन्नत से हट गए उसकी सजा मिले बगैर बख्शिश नहीं हो सकती, ये पक्की बात है।
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज पढ़ो, जिंदगी की आखिरी समझ कर पढ़ो, तुम्हें तो पता ही नहीं अगली आनी कि नहीं आनी, मिलनी है कि नहीं मिलनी। ये सारी फ्यूचर की प्लानिंग होती है कि जी अगर मेरा कोई मसला हो जाए, अगर तलाक हो जाए तो फिर हक महर इतना होगा। ये गलत बातें हैं। बगैर इस सोच के अगर वो डिमांड करती है, अगर मर्द करोड़पति है, वो कहती है जी मुझे एक गाड़ी ले दे, या मैं ये एक कोठी चाहती हूँ, या इस समय एक घर चाहती हूँ, मुझे लेकर दे, या मेरे नाम ये प्रॉपर्टी कर दे, या 10 लाख दे दे, तो फिर तो जायज़ है। लेकिन अगर उसमें लालच नहीं है, लालच की बुनियाद पर ये डिमांड नहीं है कि औरत जो है वो मर्द की हैसियत से ज़्यादा उससे हक महर यानी मतलब रखे। वो बंदा, इसका मतलब है कि वो मर्द को ब्लैकमेल कर रही है। इसका मतलब है कि वो हुकूकुन निसा में ये बात नहीं है कि औरत जैसे मर्जी करे। अब देखें ना, खावंद का जहाँ मुकाम है, रसूलन की हदीस है कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये जायज़ होता ना कि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा जायज़ है, मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत को इजाज़त देता कि ये अपने खामद को सजदा करे। ये औरतें बड़ा चीखती हैं जी कि हमारे हकूक है, तो मर्द सारा दिन पिस जाता है। अच्छा, जो अल्लाह पूरी कायनात को संभाल रहा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, मबऊस किया गया पूरी उम्मत के लिए, तो वो मर्द है। इसलिए औरत को इस तकाजे का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो डिमांड करे जो बंदा दे सकता है, वो उस चीज़ का तकाजा करे जो उसको पूरा कर सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। मैं खाली कॉल ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा, एक सवाल है, आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब आपसे जावेद अत्तारी साहब बहावलपुर से सवाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं नस्वार का कारोबार करता हूँ, तो मुफ्ती साहब से पूछ के बताएं कि कौन सी पसंद फरमाएंगे। कारोबार कैसा है? देखिए, हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक कराहत के साथ है, उसकी कमाई भी कराहत वाली होगी। हर वो चीज़ के जो फ़ी नफ्सी ही जायज़ है, उसकी कमाई भी जायज़ होगी। हर वो चीज़ जो फ़ी नफ्सी ही हलाल है, उसकी कमाई भी हलाल होगी। नस्वार के मुतालिक हुक्म शरा ये है कि ये मकरूह है। पहली बात तो ये कि अगर इसकी ज़्यादा मिकदार, अगर कोई बंदा, ज़ाहिर है जिसने टेस्ट किया वही बता सकता है, लेकिन जहाँ तक बात सुनने में आई है हमारी तहकीक के मुताबिक इसके अंदर तंबाकू होता है, और तंबाकू को ये पीस कर या कूट के उसको बनाया जाता है। तो अब इससे बाज़ हालात में नशा भी तारी हो जाता है। जिस पॉइंट पे जाके नशा तारी होगा उस पॉइंट पे तो ये हराम होगी, उससे पहले ये मकरूह होगी। तो अब इससे जो कमाई हासिल होगी ज़ाहिर है वो भी कराहत पर मबनी होगी, मकरूह होगी। तो इसलिए तारी साहब आपसे इल्तिमास है कि आप इसको छोड़कर कोई और कारोबार करें, और हर वो चीज़ के जो उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचाने वाली हो उससे बचना चाहिए। बल्कि बाज़ ने तो यहाँ तक लिखा कि जहाँ पे कुरान में हुक्म है ना कि अपने हाथों को हलाकत में न डालो, तो अगर इससे हलाकत वाक़ई होती हो तो फिर इसका कारोबार हराम भी हो सकता है।